It's all your love and affection. Yeah. Today, 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं आई हूँ एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड इस मौके पर मुझे यहाँ पे निमंत्रण देना और यहाँ पे कुछ कहने के लिए आप सब ने मुझे मौका दिया था एंड फिल्म फेस्टिवल इज़ लाइक ए बिग प्लेटफॉर्म नेशनली इंटरनेशनली तो अपने कला को अपने संस्कार को संस्कृति को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हज़ारों कहानियाँ आती हैं उन भावनाओं को हम लोगों ने फिल्मों में बना के लोगों तक पहुंचाते हैं तो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म और यहाँ पे खासतौर गोवा में कला और संस्कृति का और सौंदर्य का एक अनोखा एक मिलन है तो मैं यहाँ गोवा आना और मुझे यहाँ पे लास्ट डे इस इंटरनेशनल फेस्टिवल का समापन पर बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगा మ్యామ్ మీరు తెలుగు నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యారు ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వీటిల్లో సో చాలా బాగుంది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఇది ఇంటర్నేషనల్లీ నేషనల్లీ మనకు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కథలని ఒక ప్లాట్ఫామ్లో పెద్ద స్క్రీన్లో చూపించడం అనేది కళాకారులుగా అలాగే డైరెక్టర్స్ కూడా కొత్త వాళ్ళకి కొత్త అనుభవాన్ని మనం కొత్త కథల్ని కూడా చూడడానికి ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఇది తెలుగు అమ్మాయిగా నేను ఇక్కడికి రావడం ఈ యొక్క లాస్ట్ డే ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొనడం నాకు చాలా గర్వంగా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ హౌ ఇస్ ఇట్ కమింగ్ టు ఇఫీ హియర్ या इफ़ी इज़ क्लोजिंग सेरेमनी में आया हूँ अभी लास्ट 10 डेज से अच्छा फिल्म फेस्टिवल चल रहा है गोवा में बीच में भी एक बार आके गए जस्ट अटेंड करके गए आज क्लोजिंग सेरेमनी में आया हूँ सो इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी फिल्म फेटर्निटी उसमें बस एज ए प्रोड्यूसर सो ऑल इंटरनेशनल का मार्केटिंग का भी स्टडी कर रहे हैं सो సార్ రేపు గేమ్ చేంజర్ సాంగ్ రాబోతుంది ఎలా ఉండబోతుంది जस्ट नो रिलीज రిలీజ్ సో దేర్ ఇస్ సాంగ్ రిలీజ్ ఇన్ గేమ్ చేంజర్ अभी रिलीज हुआ जस्ट 3 मिनट्स हुआ we सॉन्ग heard you रिलीज हुआ spent 20 crore on that song in New Zealand नेचुरली इज अ शंकर सॉन्ग ना सो उधर बजट का सोचते भी नहीं सो उसके लिए स्पेंड करना पड़ता वो जान 10 तो स्क्रीन पे देखे जब मजा आएगा గేమ్ చేంజర్ ప్రమోషనల్ ప్లాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ అప్కమింగ్ we have ప్రమోషనల్ a lot of plans first we are doing event first time इंडियन फिल्म का यूएसए में इवेंट हो रहा है दिसंबर 21st दैट इज फर्स्ट इवेंट अमेरिका में Raju ji, being a producer, how do you select your project? What is that you see? जो अभी तक 58 फिल्म्स बनाए लास्ट 20 years आई विल बिलीव ओनली कंटेंट సార్ ఇలా దిస్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ ఆఫర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ సో యూఆర్ ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ విచ్ యాక్చువల్లీ క్యాటర్స్ టు సచ్ మూవీస్ సో కెన్ యూ టెల్ అబౌట్ యువర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ या दिल राजू ड्रीम्स आई एम वर्किंग आउट ऑन दैट कंपनी so already total new talent I am searching for total new talent from technicians artists everyone is the only new one so already 4 projects is locked I will announce after Jan 10th సో విల్ బి సీయింగ్ మోర్ ఇన్ ద ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ సూన్ yeah definitely థ్యాంక్ యూ సార్ thank you thank you వాట్ డు యు లైక్ టు సే ఆన్ ద క్లోజ్ డే ఆఫ్ Oh, I'm extremely happy to be here first of all because it's my first time at IFFI and to be representing Telugu cinema with 35 has been amazing and my team is yet to come. I'm going to go inside and have a good time and it was also amazing to see all of the selected films this year. It was a great list and I love watching movies so it was a great marathon for me from morning to evening. Almost every day. I'm looking forward to coming next year again and I hope this is the start for a lot more Telugu films to come every year. Which movie did you like? You saw other movies other than 35, right? One that I saw yesterday was actually Aadujivudam. I worked with Blessy sir in 2008. So to see him yesterday after so long was such a wonderful experience and I'd already seen Aadujivudam but to watch it again and to see it get all of the applause was amazing and I hear it is already in the international competition as well so I'm really rooting for it and all the other films. So all things asked, are you going to win the award? The Which Celebrity award? The debut director for 35 movie. I hope but we got to meet the lovely team of Gypsy as well along with us so honestly, I mean, I personally think there is absolutely no success or failure in art. You learn with every film and
to be selected in the Indian panorama itself is a great thing. So I'm rooting for every film. I mean, if Nandu wins, more than happy for him. All the best. Thank you so much. Thank you. Which they came up with, and it's lovely. So we're trying to do dances from around the country. अभी 7-8 मिनट में सारे तो नहीं कर पाएंगे, but whatever we could and try to bring how beautiful our culture is and how colorful and how rich it is. So yeah. Shia ma'am, you're known for your dances, and we heard that you secured a special song with Surya sir in a Tamil movie. Yeah. Is that true? I did a song in Surya Sir's movie. It was lovely shooting for it. I think वो दिसंबर में आ रहा है गाना. ऐसा मुझे last बताया था, yeah. That's true. Any upcoming works in Telugu, Tamil? I'm doing a new film in Telugu, but वो it's more of a pan-Indian film. It's more history with it's very interesting. Yeah, so उसकी shooting actually परसों से शुरू होगी. यार हिंदी फिल्म ज़्यादा क्यों नहीं करती आप? दिखती नहीं है, जब भी दिखती है तो बहुत हमको मतलब मिसमराइज कर देती है, तो क्या कारण है? How sweet, thank you. आप ये प्लीज़ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को बोलिए. तो यू डोंट गो एंड आस्क और यू वेट टिल द प्रोड्यूसर. कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो नहीं हो पाता, कभी तालमेल नहीं बनता, कभी कुछ नहीं होता. सो इट्स ऑल लाइक दैट. समटाइम द गुड वर्क डजंट कम टू यू, क्योंकि कई बार सही फिल्म में होना इट्स ऑल अबाउट गुड लक. हाँ, एवरीथिंग कम्स टुगेदर. कभी होता है, कभी नहीं हो पाता. सो या आई मीन हम तो प्रे करते हैं कि अच्छी फिल्मों में काम मिले, हम लोगों से काम. ऑफ कोर्स वी गो आस्क फॉर इट शेमलेसली, बट कभी होता है, कभी नहीं होता. सो I really don't know. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. I'm a part of this film, which is going to be India's, I guess, first ever firefighter film. So अग्नि एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम पहली बार शायद फायर फाइटर्स की दुनिया को, उनके जीवन को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे. और पिछले कुछ सालों में जितने फायर इंसिडेंसेस हम सब ने देखे हैं न्यूज़पेपर्स में, आई गेस उस हिसाब से शायद बहुत कुछ जानने भी मिलेगा. You are very prominent face in OTT. How do you feel? People recognize you with the character. I feel privileged, ma'am. I feel really lucky and feel honored actually, because मैं करेक्ट टाइम पे शायद करेक्ट अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाया. Thank you. You also साबरमती रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है. सीएम सर ने खुद देखी है मूवी, उन्होंने बोला ऑब्वियसली बहुत सारी जगह पर टैक्स फ्री हो चुकी है. आपको कैसा लग रहा है कि टैक्स फ्री हो रही है, इतना प्यार मिल रहा है? ये बहुत कम होता है, और ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों में ऐसी चीज़ें बहुत कम हुई हैं. और 7 राज्यों में फ़िल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है, तो काफ़ी खुशी है इस बात की. जैसे कि सब जानते हैं कि लोग अभी भी जा रहे हैं सिनेमा घरों में, साबरमती रिपोर्ट देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है. इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की जो मूवी है उसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह मिली है, आपके लिए क्या है? वैसे ये सवाल किसी ने अब तक पूछा नहीं है. खुशी इस बात की है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ कई बार ऐसी कहानियाँ कहना ज़रूरी होता है, और उसे लोग देख रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जब आप कहानी बनाएं लोगों तक पहुँचे, और जब लोग उसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो बेहद खुशी होती है. क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी था, बट आई थिंक हाइंडसाइट में अब जब हम मुड़ के देख रहे हैं, जब इतना समय बीत चुका है और लोग फिल्म अभी भी देख रहे हैं, खुशी इस बात की है कि लोग इंटरेस्टिंग सिनेमा भी देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ. तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप कोई हार्ड हिटिंग, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट फिल्म के साथ जब आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि उसे देखने वाले लोग भी हैं. जी मुझे तो नहीं लगता मैं हैपनिंग हूँ. आपको लग रहा है तो उसकी बहुत खुशी है. थैंक यू. बट आई थिंक इट्स जस्ट द बिगनिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम. 12th फेल हो गई या साबरमती हो गई, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल फिल्म्स हैं, लोगों तक पहुँची हैं. बट आई थिंक इट्स जस्ट द बिगनिंग. आई हैव जस्ट बिगन. अभी कंसिस्टेंसी जो है वो रहेगी, तब शायद थोड़ा मज़ा आएगा. Do you think this is a new month? सिलेक्शन चेंज होगा कि उसमें बदलाव? मैंने हमेशा ये कहा है. भी बढ़ी है. जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है, और मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबली ही काम करने की कोशिश करता हूँ. चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो सेक्टर 36 हो, या चाहे वो साबरमती रिपोर्ट हो. कोशिश रहती है कि जैसे मैंने कहा कि
एंटरटेनमेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल सिनेमा हो एंड मतलब कोशिश रहती है, यू नो, दैट्स द आइडिया। But is there enough responsible cinema in the making? आई थिंक देयर इज़। अगर एक 12th फेल है और अगर एक साबरमती रिपोर्ट है और लोगों ने उसे इतना सराहा है, जनता ने इतना सराहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो ये इस बात का अंदेशा है कि रिस्पॉन्सिबल सिनेमा लोग देखना चाहते हैं, एंटरटेन भी होना चाहते हैं। और सिनेमा, हिंदुस्तान का जो सिनेमा है वो सबसे बड़ा सिनेमा है पूरे विश्व में। हम लगभग 1800 से 2000 फिल्में साल में बनाते हैं, तो हर प्रकार की फिल्में बनती हैं और बननी भी चाहिए। रहा सवाल रिस्पॉन्सिबल सिनेमा का, तो बहुत लोग हैं जो बना रहे हैं, चाहे वो लापता लेडीज़ क्यों ना हो, चाहे वो 12th फेल क्यों ना हो, और भी लोग पहले भी बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। Actually belongs to Vikrant Master. Do you think, Thank you so much. Vikrant sir, do you think this is a new mantra for Bollywood, honest and responsible films more than masala films? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि देखिए, मसाला फिल्में भी चल रही हैं और चलनी भी चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की फिल्में बननी चाहिए। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करने की रुचि रखता हूँ, तो वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पायरिंग सिनेमा हो। देखिए, कहीं ना कहीं आज भी जो सिनेमा का माध्यम है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माध्यम है। समाज के बहुत से लोग सिनेमा देख के प्रेरित होते हैं। अगर आप 12th फेल की बात करें, मैं इतने बच्चों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे कहा है कि वो फिल्म देख के उनको ज़िंदगी में एक नई दिशा मिली है। तो एंटरटेन भी कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही साथ में अगर हम समाज का आईना बन के वो कहानियाँ अगर हम कहने की कोशिश करें और लोग उसे देखें तो अच्छा लगता है। हर प्रकार की फिल्में बननी चाहिए। Thank you. Absolutely great, really enjoyed it, and I was very happy to be over here. And इफ़ी से हमेशा जुड़ा रहा है, बहुत सालों से जुड़ा रहा है, and कभी जूरी के तौर पे, कभी चेयरमैन के तौर पे, कभी स्टीयरिंग कमेटी में, and I think इफ़ी is a great platform to be over here, and lots of good movies, short film, documentary was shown this year. I'm very happy, and for us to choose the film was web series was very difficult because of top 10. And then we had to filter to 8, to 7, to 5, to 4, to ultimately 1. But अच्छा लगा, and it was great to be among other co-jury also. Rupali Ganguly ji, Krishna ji, everybody, Harish ji. So it was very nice, and I'm very happy to be in IFFI over here all the time. And great to meet film industry people across the globe. चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो हमारे यहाँ के हो, अलग अलग फिल्म मेकर्स और साउथ इंडस्ट्री के लोग हो, मिलना अच्छा लगता है, उनसे बैठ के इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। कई चीज़ें हमको सीखने मिलती है। कई फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट अच्छा होता है, बजट कम होता है, तो भी हम लोग को सीखने मिलता है कि हाउ दे मेड इन सच अ मूवी। हर किसी को बड़ा बजट नहीं मिलता, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। एंड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंटरनेशनल बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और ग्लोबली इसको जाना जाता है। हम किधर भी जाते हैं, मैं कहते हैं कि यार इंडिया से हो, गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, तो आई थिंक इट्स अ बिग प्रेस्टीज। आई हैड अ अपॉर्चुनिटी टू गो टू रिप्रेजेंट इंडिया इन कांस फॉर टू टाइम्स, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी जाके लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं हमारी पिक्चरों को लेकर, हमारे कॉस्ट्यूम्स को लेकर, हमारे गाने को लेकर। तो आई फील इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड इंडिया इज़ डेफिनेटली रीच द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। ओटीटी के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन रहा? OTT की ऑब्जर्वेशन ये है कि OTT इज़ डेफिनेटली ओवर हियर टू स्टे, एंड आई ऑलवेज सेड दैट कि फिल्म एंड OTT विल को एग्जिस्ट टुगेदर। OTT की ऑडियंस होगी, फिल्म्स की अलग अलग ऑडियंस होगी, तो वो दोनों देखेगी। ऐसा नहीं होगा, अच्छा कंटेंट होगा, चाहे वो थिएटर में हो चाहे OTT में, लोग देखेंगे उसको, सराहेंगे। क्या हो रहा है? फिल्मों में फिल्म बना रहा हूँ, और क्या अभी मैंने आई एम राइटिंग अ फिल्म कॉल्ड वाइफ्स ऑफ बॉलीवुड। मैंने उस पर काम शुरू किया है, और वो स्क्रिप्टिंग काफ़ी लेयर्ड है। वो सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ट्रायल एंड टर्बुलेशन है अबाउट द बॉलीवुड वाइफ्स। तो उसके ऊपर है बहुत हार्ड हिटिंग रियल का एक जो मेरा तड़का होता है, जैसे आप लोग को अच्छा लगता है हमेशा, वो है। तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, लेट्स सी जल्दी से जल्दी मैं स्क्रिप्ट ख़त्म करूँ, एंड आई होप टू स्टार्ट द मूवी सीन। और दूसरी फिल्म भी है मेरे पास जिसका काम चालू है, तो लेट्स सी। OTT पे ही मेरी बातचीत चालू है, प्रोजेक्ट किसी है, तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी नहीं।